Good morning, students. Welcome to this new lecture of Transportation Engineering 2. As you know that we are dealing with the fourth unit of our syllabus and we are studying the airport engineering. In last lecture, we have seen what are the different types of runway orientation and what are the two main windrows diagram, that is type 1 and type 2. So we have studied the windrows diagram and runway orientation in previous lecture. So today we will continue our topic and we will move forward, and today we are going to study about the runway design. In runway design, basically in your syllabus, in runway design you have to study about the length of runway and what are the important corrections to be applied into the basic runway length. So what is runway? As we all know that runway is like a rectangular section over which landing and takeoff operation takes place, which is also uh, it's like a pavement. Okay, runway is like a pavement. Okay, as you can see in front of your screen, it's like a runway. Okay, basically on runway landing and takeoff operation takes place. So what should be the length of runway, what should be the width of runway? Okay, these are comes under the runway design. In your syllabus, we will basically deal into the different types of corrections on runway length, the basic runway length. Okay, we will not going to study about the width or the side slope, okay, or camber, longitudinal slope. We will not going to study about these things. Okay, basically you just have to do one numerical on runway design, that is on the basic runway length and corrections to the basic runway length. Okay, as per your syllabus. So first we will see what is runway length. As you all know, runway is like a rectangular, as I told you, it's like a rectangular shape area like this. Okay, over which takeoff and landing of takeoff and landing of planes takes place. Okay, so plane comes, it land and then take off in runway. Okay, while taking off or landing, it requires a length. Okay, whenever aircraft land on a runway, it runs a few kilometers or some meters, okay, and then stop. So uh, aircraft will run on only runway. Okay, that's why the material to be used in runway should be of higher quality. Okay, and this length, how much distance the aircraft should move after landing or takeoff, that will evaluate the runway length. Okay, जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे पे लैंड होता है या टेक ऑफ करता है, उसे एक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस, या उसे एक जब वो टेक ऑफ करने जाता है तो उसे एक मोमेंटम के लिए वो लेंथ प्रो चाहिए रहती है. दैट्स वाई रनवे लेंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रनवे लेंथ कितनी होना चाहिए. ठीक है, उसमें क्या क्या करेक्शंस ऐड हो गए. ठीक है, एक जनरल एक लेंथ होती है रनवे की जिसको बेसिक रनवे लेंथ बोला जाता है, जितनी मिनिमम को प्रोवाइड करना ही पड़ता है एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, बट उसमें कुछ करेक्शंस भी ऐड किए जाते हैं. ठीक है, हम देखेंगे वो करेक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो बेसिकली बेसिक रनवे लेंथ. ओके, बेसिक रनवे लेंथ इज कैलकुलेटेड अंडर द फॉलोइंग अज्यूम्ड कंडीशन. जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बेसिक रनवे लेंथ, एक जो रनवे की एक बेसिक लेंथ है, ठीक है ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. इट इज कैलकुलेटेड अंडर दिस अजम्पशंस. ये कुछ अजम्पशंस है जिन्हें जिनके हिसाब से हम बेसिक रनवे लेंथ को कैलकुलेट कर देते हैं. ठीक है, वो अजम्पशंस अलग है, ये जो बेसिक रनवे लेंथ के निकालने के लिए ये अजम्पशंस यूज किए जाते हैं. ठीक है, बट वो जो बेसिक रनवे लेंथ निकली है, जो आप कैलकुलेट कर लोगे या जो हमारे पास अवेलेबल रहेगी, उसमें भी करेक्शंस अप्लाई किए जाते हैं. जैसे कि आप इस करेक्शंस को देखोगे, जैसे कि पहला जो कंडीशन है, सॉरी पहली जो कंडीशन है, दैट इज एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट सी लेवल. जैसे कि आप सबको पता है कि सी लेवल जो पॉइंट है, ठीक है, हम जो लेवल्स लेते हैं या बेंचमार्क्स जो कंसिडर करते हैं, दैट इज मेन सी लेवल. ठीक है ना, उसे हम MSL मेन सी लेवल पे कंसिडर करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग है, द फर्स्ट assumption इज
द एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट सी लेवल, यानी कि जो एलिवेशन है उसे 0 मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर MSL पे हम ले रहे हैं जिससे रेफरेंस में हम एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं, अगर वही हम MSL पे अगर लेवल को कंसिडर कर रहे हैं तो मतलब एलिवेशन 0 हो गया। उसके हिसाब से पहली बेसिक लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट सी लेवल विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, बेसिक रनवे लेंथ इस तरह कैलकुलेट की जाती है, लेकिन इसके लिए करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि पॉसिबल होगा नहीं, एयरपोर्ट जो है वो एक लेवल पे होता है हमेशा। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री एट द एयरपोर्ट, हमें यह मान के चलना पड़ता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री का एयरपोर्ट पे है यूजुअली। ठीक है, ये सारी रिकमेंडेशन ICAO के तरफ से, ठीक है ना, ICAO के तरफ से सारी रिकमेंडेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारे assumptions दिए। ठीक है, आफ्टर दैट रनवे इज लेवल्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, यानी कि हम इसमें मान के चल रहे हैं कि रनवे जो है वो पूरी तरीके से एक लेवल सरफेस पे है। ठीक है, पूरी तरीके से लेवल सरफेस पे है, वो कुछ इस तरीके से रनवे नहीं है। ठीक है, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं रनवे जो है ये पूरी तरीके से लेवल सरफेस है। ये एक assumption है, द रनवे इज लेवल्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, यानी कि उसमें इफेक्ट ग्रेडियंट जो है वो बिल्कुल 0 है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट नो विंड इज ब्लोइंग ऑन रनवे। I know this sounds something different to you because in previous lecture, as we have discussed, the runway is designed on the basis of wind direction. Okay, but here we are assuming that no wind is blowing on runway. ठीक है, क्योंकि विंड इफेक्ट की वजह से रनवे लाइन इंक्रीज हो जाती है, लेकिन रनवे का जो ओरिएंटेशन है वो विंड के हिसाब से ही किया जाता है। लेकिन जब रनवे की लेंथ निकाली जाएगी तो उसमें हम एक अजम्पशन लेंगे कि नो विंड इज ब्लोइंग ऑन रनवे। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो अजम्पशन है ये सिर्फ अजम्पशन है बेसिक रनवे लेंथ के लिए। ठीक है, लेकिन जब ओरिएंटेशन करते हैं रनवे का डायरेक्शन, उसमें विंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, विंड के हिसाब से ही रनवे का ओरिएंटेशन किया जाता है। आफ्टर दैट एयरक्राफ्ट इज लोडेड टू इट्स फुल कैपेसिटी, जितनी भी कैपेसिटी है 300 पैसेंजर्स की, 400 पैसेंजर्स की, हमें अज्यूम करना है कि एयरक्राफ्ट इज लोडेड टू इट्स फुल्ली फुल्ली लोडेड टू इट्स कैपेसिटी। ठीक है, ये भी एक अजम्पशन है। आफ्टर दैट नो विंड इज ब्लोइंग ऑन द वे टू डेस्टिनेशन, जहाँ से एयरक्राफ्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है या आ रहा है वहाँ पे भी कोई विंड ब्लो नहीं हो रही, ये एक अजम्पशन है। दीज आर ओनली अजम्पशंस। ओके, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एग्जिस्ट अलोंग द वे। ठीक है ना, जो 15 डिग्री का एक टेम्परेचर है वो कंटिन्यू रहता है, ये भी एक अजम्पशन है। ये अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ बेसिक रनवे लेंथ निकालने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इन अजम्पशंस के ऊपर बेसिक रनवे लेंथ निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद let's move to the next thing, that is the factors affecting the basic runway length. See that basic runway length is determined, okay, on the basis of performance characteristics of aircraft using the airport, manner in which an aircraft actually perform landing and takeoff. जो बेसिक रनवे लेंथ है वो कैसा निकाली जाती है जनरली, देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक जो एयरक्राफ्ट की, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहले भी देख लिया था, उसका साइज होता है, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख चुके थे। ठीक है ना, किस तरीके से एयरक्राफ्ट, उसके टर्निंग रेडियस क्या होता है, सारी चीज़ों के हिसाब से बेसिक रनवे लेंथ एक आइडेंटिफाई की जाती है। उसके बाद एयरक्राफ्ट किस तरीके से लैंड करेगा या टेक ऑफ करेगा उस पर्टिकुलर पेमेंट पे या रनवे पे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देर आर बेसिकली 3 ऑपरेशंस, फर्स्ट इज नॉर्मल लैंडिंग, देन नॉर्मल टेक ऑफ एंड आफ्टर दैट इंजन फेलियर। ये 3 कंडीशन के हिसाब से बेसिक रनवे लेंथ निकाली जाती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल लैंडिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बेसिक रनवे लेंथ इज डिटरमाइंड ऑन द परफॉर्मेंस फ्रॉम द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट यूजिंग द एयरपोर्ट। द फॉलोइंग केसेस आर यूजुअली कंसीडर्ड: नॉर्मल लैंडिंग केस, नॉर्मल टेक ऑफ केस, इंजन फेलियर केस। ठीक है, जो जेट इंजन है उसमें ये तीनों केसेस कंसिडर किए जाते हैं। जेट इंजन में हमने पढ़ चुके हैं पहले, एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे थे टाइप ऑफ इंजन में। आफ्टर दैट फॉर द पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट ओनली फर्स्ट नॉर्मल लैंडिंग केस या इंजन फेलियर केस को कंसिडर किया जाता है। द केस विच वर्क्स आउट द लॉन्गेस्ट रनवे लेंथ इज फाइनली अडॉप्टेड। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट रनवे लेंथ में फिट बैठता है फिर वो लेंथ को हम कंसिडर करते हैं। तो अभी हम देखेंगे ये 3 कंडीशन क्या है। ठीक है,
दिस थ्री कंडीशंस. फर्स्ट इज नॉर्मल लैंडिंग केस. सबसे पहले नॉर्मल लैंडिंग केस देखते हैं. द लैंडिंग केस रिक्वायर्स दैट एयरक्राफ्ट शुड कम टू स्टॉप within 60% of landing distance. The runway of full strength pavement is provided on the entire landing. जैसे सिंपल बताऊँ मैं, अगर सपोज ये आपको रनवे की पूरी लेंथ दिख रही है, सेम मटेरियल इस पूरे रनवे की लेंथ में प्रोवाइड किया जाएगा, बट एयरक्राफ्ट जब लैंड करेगा, नॉर्मल लैंडिंग किसको बोलते हैं देखिए, जब एयरक्राफ्ट 15 मीटर की हाइट पे, ये जो थ्रेशोल्ड होता है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, जो एकदम कॉर्नर पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड से 15 मीटर की डिस्टेंस जब आएगा तो एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ जाएगा. नीचे की तरफ जाने के बाद एयरक्राफ्ट जब इस पे लैंड करेगा, उसके बाद थ्रेशोल्ड से लेके जब एयरक्राफ्ट मूव करेगा आगे की तरफ और यहाँ पे आके रुक जाएगा, इट विल स्टॉप हेयर. So the distance from the threshold to the distance up to which aircraft stops, okay, the point where aircraft stops to the distance between the points where aircraft stops and the threshold, ये जो distance दिख रहा है, this distance, okay, ये जो इसको बोलते हैं लैंडिंग डिस्टेंस. ठीक है, थ्रेशोल्ड से लेके जब तक एयरक्राफ्ट जिस पॉइंट पे रुकता है जाके, ठीक है, उसे बोला जाता है लैंडिंग डिस्टेंस. तो ये देखिए, ये होता है आपका लैंडिंग डिस्टेंस, ये पूरा. ठीक है, अब जो पूरा अवेलेबल तो ये पूरा ही पेमेंट है, ठीक है, लेकिन जब एयरक्राफ्ट जहाँ पे आके रुकता है, ये डिस्टेंस ये पॉइंट तक के, जनरली इट इज 60% ऑफ लैंडिंग डिस्टेंस. मान लीजिए कि अगर आपका 1000 मीटर का लैंड, ये आप बोल सकते हैं रनवे है, तो उसमें 600 मीटर्स तक के एयरक्राफ्ट यहाँ पे रुक जाना चाहिए, तो इसे बोलेंगे हम नॉर्मल लैंडिंग. तो उसके हिसाब से भी हम रनवे की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है ना, अगर वो 60% एयरक्राफ्ट इस तरीके से लैंड हो रहे हैं कि वो नॉर्मल लैंडिंग हो रही है उसमें जनरली, तो 60% एरिया कवर करता है, लेंथ को कवर करता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि मटेरियल इस साइड में कम स्ट्रेंथ का हो या ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एयरक्राफ्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है. होमोजेनिटी इज मेंटेन थ्रू आउट द पेमेंट लेंथ. ठीक है, जो भी मटेरियल इधर साइड यूज हो रहा है उतना ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल पूरे रनवे पे यूज होगा. तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैंडिंग केस, कि 60% एरिया ही कवर करना चाहिए. ठीक है, आफ्टर दैट नॉर्मल टेक ऑफ केस क्या होता है देखिए यहाँ पे. द नॉर्मल टेक ऑफ केस रिक्वायर्स अ क्लियर वे विच इज एन एरिया बियॉन्ड द रनवे एंड इट्स अलाइनमेंट विद द सेंटर ऑफ रनवे. जैसे कि ये रनवे दिख रहा है आपको, इसके अलाइनमेंट एक सेंटर से क्लियर वे होता है. ठीक है, ये क्लियर वे की जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है, ये 150 मीटर मिनिमम होती है. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ करने गया, वैसे तो एयरक्राफ्ट इसी क्लियर वे के काफ़ी पहले ही टेक ऑफ कर जाता है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ इशू आए, तो वो क्लियर वे तक भी जा सकता है. इसलिए क्लियर वे भी एक तरह का पेमेंट का पार्ट है. ठीक है, द विड्थ ऑफ क्लियर वे शुड नॉट बी लेस देन 150 मीटर एंड इट ऑल्सो केप्ट फ्री फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन. यहाँ पे भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एयरक्राफ्ट लैंड ये टेक ऑफ करने जाएगा. ठीक है, तो ये जो क्लियर वे पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्लियर वे. पूरी तरीके से क्लियर जोन होता है. ठीक है, तो ये नॉर्मल टेक ऑफ का केस हो गया. उसके बाद देखिए एक तरह का पेमेंट का है, देखिए स्टॉप वे है, ये जो आपको दिख रहा है रेड में, जो उसके बाद ये क्लियर वे. ठीक है, ये स्टॉप वे और ये क्लियर वे. स्टॉप वे का काम अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. देखिए फॉर एग्जांपल कई दफ़ा सपोज एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करने जा रहा है, सपोज एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है ये रनवे से. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, टेक ऑफ करने के जस्ट पहले इंजन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो एयरक्राफ्ट थोड़ा सा स्टॉप करेगा. तो जब स्टॉप करेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, स्टॉप वे तक आ सकता है एयरक्राफ्ट. अगर टेक ऑफ के पहले कुछ इशू आया, तो एयरक्राफ्ट क्या होगा, पायलट टेक ऑफ नहीं करेगा और एयरक्राफ्ट थोड़ा सा और आगे मूव होगा, क्योंकि वो एक स्पीड मेंटेन कर रहा है, तो वो स्टॉप वे तक जा सकता है. इसलिए जो इसे बोला जाता है इंजन फेलियर केस, जिसमें हमको रनवे की लेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है, तो स्टॉप वे तक के रनवे की लेंथ हो जाती है. ठीक है, देखिए यहाँ पे इंजन फेलियर केस में, द इंजन फेलियर केस में रिक्वायर्स आइदर अ क्लियर वे और स्टॉप वे और बोथ. या तो क्लियर वे प्रोवाइड करना है या स्टॉप वे, या फिर दोनों भी प्रोवाइड कर सकते हैं. स्टॉप वे इज डिस्क्राइब्ड एज एन एरिया बियॉन्ड द रनवे एंड सेंट्रली लोकेटेड इन अलाइनमेंट विद द सेंटर ऑफ रनवे. अभी जैसे क्लियर वे था, वैसे ही स्टॉप वे बिल्कुल लोकेटेड सेंट्रली होता है रनवे से. ठीक है, इट इज यूज फॉर डी एक्सेलरेटिंग ड्यूरिंग एन अबॉर्टेड और टर्मिनेटेड टेक ऑफ. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको पायलट को लग रहा है इंजन में प्रॉब्लम है, तो वो टेक ऑफ नहीं करेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे तक एयरक्राफ्ट मूव होगा, क्योंकि एक स्पीड से आ रहा था एयरक्राफ्ट, सडनली
ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉप वे पेमेंट शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू कैरी द वेट ऑफ एयरक्राफ्ट विदाउट कॉजिंग एनी स्ट्रक्चरल डैमेज टू द पेमेंट। जो यहाँ पे स्टॉप वे का जो मटेरियल है वो भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना पेमेंट का है, क्योंकि एयरक्राफ्ट इसके ऊपर भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन के हिसाब से बेसिक रनवे लेंथ निकाली जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट बेसिक रनवे लेंथ में जैसे मैंने आपको बताया कि पॉसिबल ही नहीं है कि एलिवेशन 0 लिया जाए, MSL पे लिया जाए। टेम्परेचर उतना ही रहे 15 डिग्री, पॉसिबल नहीं है। ग्रेडियंट बिल्कुल फ्लैट रहे, पॉसिबल नहीं। हम जब अजम्पशन देख रहे थे कि रनवे लेंथ किस तरह निकाली जाती है, बेसिक रनवे लेंथ, तो उसमें करेक्शंस तो आना ही है। एलिवेशन एक लेवल पे एयरक्राफ्ट जो है वो, जो एयरपोर्ट है वो लोकेटेड हो सकते हैं, टॉप पॉइंट पे हो सकते हैं, टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, ग्रेडियंट कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये तीनों करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पहला जो कंडीशन है जैसे कि आप देख सकते हो कि सपोज MSL बिल्कुल MSL पे नहीं हो सकता, कोई पॉइंट पे होता है। ठीक है ना, एयरपोर्ट हो सकता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हो मेन सी लेवल से। ठीक है, ठीक है, मेन सी लेवल पे हो एयरपोर्ट दैट इज नॉट पॉसिबल। एयरपोर्ट कुछ हायर लेवल पे होता है, तो क्या होगा, हमें एलिवेशन का करेक्शन तो करना ही पड़ेगा बेसिक रनवे लेंथ में। ठीक है, कोई भी आपको सपोज रनवे लेंथ मिल गई है, एक रनवे की लेंथ है बेसिक रनवे लेंथ, लेकिन इसमें ये सारे करेक्शंस बहुत ज़रूरी है ताकि रनवे लेंथ एक प्रॉपर रनवे लेंथ प्रोवाइड की जाए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर जो है वो वेरिएशन होता है, टेम्परेचर में मेंटेन नहीं रहेगा स्टैंडर्ड। आफ्टर दैट ग्रेडियंट को हम इस तरह बोल सकते हैं कि जो आप बोल सकते हो प्रोफाइल, जो कुछ इस तरीके से प्रोफाइल हो सकता है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, एकदम आप बोलोगे कि एकदम स्ट्रेट पेमेंट की प्रोफाइल रहे, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो ग्रेडियंट का करेक्शन भी हमको करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये तीनों करेक्शन हम एक सीक्वेंस में करेंगे। जैसे कि एलिवेशन का सबसे पहले एलिवेशन करेक्शन ही होगा, उसके बाद टेम्परेचर करेक्शन, उसके बाद ग्रेडियंट करेक्शन। वी विल मूव इन सीक्वेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, एलिवेशन सबसे पहले, टेम्परेचर उसके बाद, ग्रेडियंट उसके बाद। और जैसे आप एक बेसिक रनवे लेंथ में एलिवेशन करेक्शन करोगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, फिर टेम्परेचर करेक्शन में जो एडेड लेंथ है उसको करेक्ट करेंगे। सिमिलरली फिर ग्रेडियंट करेक्शन में जो एडेड टेम्परेचर करेक्शन है लेंथ है उसको फिर ग्रेडियंट में यूज़ करेंगे। इस तरीके से एक के बाद एक ही करेक्शन सीक्वेंस में चलता जाएगा। सबसे पहले हमको एलिवेशन करना है, टेम्परेचर करना है, ग्रेडियंट करना है। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है आपको, बहुत सिंपल है, हम इसको अच्छे से देखेंगे। न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे याद रखिए 3 ही करेक्शन होते हैं, एलिवेशन का करेक्शन, टेम्परेचर का करेक्शन, ग्रेडियंट का करेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले एलिवेशन करेक्शन। देखिए यहाँ पे करेक्शंस फॉर एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट। बेसिक रनवे लेंथ इज फॉर MSL, जैसे हमने देखे थे कि मेन सी लेवल के एलिवेशन है उसके लिए बेसिक रनवे लेंथ होती है अजम्पशन में। ठीक है ना, हैव अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हैव अ जीरो इफेक्टिव ग्रेडियंट। तो नेसेसरी जो करेक्शन है जो अप्लाई करना है वो कौन से, एलिवेशन, टेम्परेचर, ग्रेडियंट फॉर द एक्चुअल साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो बेसिक रनवे लेंथ है वो एक अजम्पशन है, एक्चुअल क्या है, जो करेक्टेड लेंथ है वो आफ्टर अप्लाइंग दिस 3 corrections, the length which you got that is called as the actual length which will be used in site. ओके, जो साइट पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो एक्चुअल रनवे लेंथ होगी, बेसिक रनवे लेंथ नहीं होगी। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज द करेक्शन फॉर एलिवेशन। ठीक है, करेक्शन फॉर एलिवेशन, जैसे कि अभी हमने देखे कि एक पॉइंट होगा। ठीक है, ये MSL हो गया, मेन सी लेवल, लेकिन हमारा एयरपोर्ट हमेशा MSL के ऊपर ही होता है जनरली। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि MSL पे ही रहे, इसलिए एलिवेशन का करेक्शन बहुत ज़रूरी है। सो द एलिवेशन करेक्शन यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे ही एलिवेशन बढ़ता है, जैसे हम एक हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो कम हो जाती है। एयर डेंसिटी रिड्यूसेस एज यू मूव टूवर्ड्स द हायर एलिवेशन। ठीक है ना, जैसे 0 पे 10 मीटर 20 मीटर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी एयर की कम होती रहेगी। ठीक है, इट रिड्यूसेस द लिफ्ट ऑन द विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट। तो क्या होगा, उसकी वजह से जो लिफ्ट है वो कम से कम होता जाएगा, जितनी हाइट पे ऊपर जाओगे उतना ही कम लिफ्ट होता जाएगा एयरक्राफ्ट का। ठीक है ना, रिक्वायर ग्रेटर
ग्राउंड स्पीड टू राइज टू एयर। अब क्या होगा, जितना लिफ्ट कम होगा, फॉर एग्जांपल या एक पर्टिकुलर लेंथ थी, ठीक है ना, अब एयरक्राफ्ट जब इस लेंथ पे जाएगा, जितनी ज़्यादा उसको लेंथ मिलेगी उतना उसको एक स्पीड मिलेगी एयर के ऊपर जाने की, जितनी स्पीड से वो आएगा उतने अच्छे से वो राइज हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, रनवे लेंथ का ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि वो ज़्यादा आसानी से ऊपर चले जाए, राइज हो जाए। दैट्स वाई इट नीड लॉन्गर लेंथ ऑफ रन। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसे रनवे की लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम हवा में ऊपर जाएंगे डेंसिटी एयर की कम होती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट ऊपर लिफ्ट नहीं हो पाता, विंग्स जो है वो लिफ्ट नहीं हो पाते। तो विंग्स को अगर लिफ्ट करवाना है, दूसरा तरीका है एक हायर स्पीड से एयरक्राफ्ट मूव करे ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना एयरक्राफ्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको उतना एक स्पीड या उसको उतनी बोल सकते हो पुश मिल जाएगा, ताकि वो आसानी से ऊपर की तरफ टेक ऑफ कर पाए। ठीक है, जितनी स्पीड से एयरक्राफ्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना अच्छे से वो टेक ऑफ कर सकता है। सिंपल वर्ड में इसको मैं पुट करूँ तो आपके लिए, जितना ज़्यादा डिस्टेंस में वो मूव करेगा उतना अच्छे से वो लिफ्ट कर पाएगा। दैट्स वाई वी नीड लॉन्गर लेंथ ऑफ रनवे। दैट्स वाई द इंटरनेशनल Civil Aviation Organization recommended basic runway length should be increased। ठीक है ना, जो ICAO है, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिकमेंड किया कि रनवे लेंथ, जो बेसिक रनवे लेंथ है उसे तो बढ़ाना पड़ेगा, शुड बी इंक्रीज, पर कितना कितना बढ़ाना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 7%, 7%, 7% पर, याद रखिए वर्ड ध्यान से देखिए यहाँ पे, 7% इंक्रीज पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन। यानी कि जितना 300, जैसे कि 300 पे गए आप, 0 से 300 पे 7% इंक्रीज करेंगे लेंथ, उसके बाद 3 से 600 पे गए तो 14%, 900 पे गए तो 21%। इस तरीके से परसेंटेज ऑफ जो लेंथ है, बेसिक रनवे लेंथ, वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अबाउट द MSN, यानी कि 7% पर 300 मीटर राइज होगा एलिवेशन में। ठीक है ना, एलिवेशन 300 मीटर बढ़ेगा तो 7% उसकी रनवे की लेंथ बढ़ेगी। सिंपल वर्ड में रनवे लेंथ 7% इंक्रीज होगी अगर 300 मीटर राइज होगा। ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे। अगर हम देखें ये जो एलिवेशन करेक्शन अभी जो हमने देखे एलिवेशन करेक्शन, इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे करेक्शन फॉर एलिवेशन, सपोज एयरपोर्ट का एलिवेशन 100 मीटर है, 100 मीटर्स है, और जो बेसिक रनवे लेंथ आपके पास अवेलेबल है दैट इज 600 मीटर। ये बेसिक रनवे लेंथ आपके पास अवेलेबल होगी। एक लैंड के हिसाब से हम एक जनरल एक बेसिक रनवे लेंथ डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि बेसिक रनवे लेंथ 600 मीटर है और एयरपोर्ट का एलिवेशन 100 मीटर। तो हमको अगर एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, करेक्शन फॉर एलिवेशन देखिए यहाँ पे 7% इंक्रीज, देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे 7% इंक्रीज होगा पर 300 मीटर राइज। तो इसको किस तरह लिखेंगे, 7/100, क्योंकि 7% है इसलिए डिवाइड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि 100 क्यों लिया कि एयरपोर्ट का एलिवेशन कितना है 100, हर 300 मीटर राइज पे हाँ कितना बढ़ेगा 7%। तो अभी एलिवेशन कितना है 100 मीटर, तो 100/300 मीटर राइज। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 300 मीटर राइज इन एलिवेशन, हर एक एक एलिवेशन पे, ठीक है ना, 300 मीटर का जब एलिवेशन का राइज होगा, ठीक है ना, तो 7% बढ़ेगा। तो अभी कितना एलिवेशन है हमारे पास, एलिवेशन हमारे पास 100 मीटर है, तो इसलिए 100 डिवाइड बाय 300, सिंपल है। ठीक है ना, ठीक है ना, 100 मीटर का एलिवेशन था, डिवाइड बाय 300, क्योंकि हर 300 मीटर के राइज पर ही 7% बढ़ेगा। ठीक है, इंटू 600, 600 क्या है बेसिक रनवे लेंथ, क्योंकि वो रनवे लेंथ को ही हमको इंक्रीज करना है, दैट्स वाई ये फॉर्मूला हो जाएगा 600। तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर। करेक्शन, करेक्शन कितना ऐड करना है हमको लेंथ में, 14 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर करेक्शन कितना हो जाएगा, 600 मीटर लेंथ थी प्लस 14 मीटर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल एक फार्मूला वाइज अगर इसको मैं बताऊँ तो ये देखिए, जैसे कि एक फार्मूला एक अलग से मैंने न्यूमेरिकल के लिए बना के रखा हूँ। करेक्शन फॉर एलिवेशन, जो पहला करेक्शन है उसमें देखिए करेक्शन फॉर एलिवेशन कैसा लेते हैं, आपको बेसिक रनवे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 7%, 7% इंक्रीज हो रहा है, 7% इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाय 300। 300 क्या क्यों लिया हमने, क्योंकि 300 मीटर के राइज पर 7% इंक्रीज हो रहा है, 300 मीटर के राइज पर 7% इंक्रीज हो रहा है,
लेकिन हमको पता नहीं है कि कितना एलिवेशन है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उसको एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट को डिवाइड करेंगे 300 मीटर से। ये एक और फार्मूला हम इस तरीके से इसका बनेगा, बेसिक रनवे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 7% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाय 300 मीटर राइज, है ना। हर 300 मीटर राइज पर 7% बढ़ रही है लेंथ। तो हमको रनवे लेंथ को कितना बड़ा ये निकालने के लिए रनवे लेंथ से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना। करेक्शन निकालने के लिए रनवे लेंथ से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो रनवे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 7% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाय 300 मीटर। फॉर एवरी 300 मीटर राइज इन एलिवेशन 7% रनवे लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। इसलिए ये इस तरीके से फार्मूला बनेगा। फार्मूला बहुत सिंपल है, रनवे लेंथ इंटू 7% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाय 300। इससे हमको ईसी मिल जाएगा, दैट इज करेक्शन फॉर एलिवेशन, ठीक है। चलिए वापस आते हैं इधर, ठीक है। जैसे ही करेक्शन आपने निकाल लिया, जैसे कि 14 मीटर करेक्शन आया, तो वो करेक्शन किस में ऐड हो जाएगा, रनवे लेंथ में ऐड हो जाएगा। 600 जो बेसिक रनवे लेंथ थी प्लस 14 मीटर, तो 614 आपका लेंथ आफ्टर लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर करेक्शन फॉर एलिवेशन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्शन के बाद 614 हो गई, बोले लेंथ बढ़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट करेक्शन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। करेक्शन फॉर टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। rise in airport reference temperature has same effect as that of increase in elevation above MSL। सेम इफेक्ट आएगा, जैसे MSL पे आप लेवल नहीं ले सकते, उसी तरीके से एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो सेम इफेक्ट डालेगा। इसके लिए भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किए है। क्या रिकमेंड किया देखते हैं। इनिशियली बेसिक रनवे लेंथ इज करेक्टेड फॉर एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर, एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट। सबसे पहले एलिवेशन करेक्शन आएगा, एलिवेशन करेक्शन के बाद ही टेम्परेचर करेक्शन आएगा। तो बेसिक रनवे लेंथ इज फर्दर इंक्रीज एट रेट ऑफ 1% फॉर एवरी 1 डिग्री राइज, ठीक है। 1% लेंथ इंक्रीज होगी 1% जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से 1% से लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी इन एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर अबाउ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट दैट एलिवेशन, ठीक है। इसको मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको सबसे पहले इसमें दिखाता हूँ सिंपल। देखिए, करेक्शन फॉर टेम्परेचर दो तरह के हैं। टेम्परेचर करेक्शन दो तरह के, सिंपल समझिए यहाँ पे। पहला है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उसके बाद है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन, इसे STE भी बोला जाता है, और एयरपोर्ट टेम्परेचर एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर जिसे ART बोला जाता है। इसे ART बोला जाता है, एयरपोर्ट रेफरेंस का टेम्परेचर, और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन क्या होता है। टेम्परेचर एट मेन सी लेवल, ठीक है। मेन सी लेवल का जो टेम्परेचर है वो माइनस 0.65% इन एलिवेशन, यानी कि अब इसमें रिडक्शन होगा, ठीक है ना। इसमें 0.65% रिडक्शन होगा एलिवेशन के हिसाब से। तो जैसे कि टेम्परेचर एट MSL जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री माइनस 0.65 इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट, ये फार्मूला है, इसे याद रखना पड़ेगा, STE का फार्मूला है। तो हम STE इस तरीके से निकाल लेंगे, 15 डिग्री माइनस 0.65% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन। आफ्टर दैट उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज जो टेम्परेचर करेक्शन होता है उसमें एयरपोर्ट रेफरेंस पॉइंट आता है। तो एयरपोर्ट रेफरेंस पॉइंट ART का सिंपल फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, TA प्लस 1/3 इंटू TM माइनस TA, ठीक है। फार्मूला याद रखेंगे, TA प्लस 1/3 इंटू ब्रैकेट TM माइनस TA। TA क्या होता है, देखिए यहाँ पे TA क्या होता है, इसे T1 भी बोला जाता है, मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जैसे कि मंथली मीन, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी एक हॉटेस्ट मंथ है ईयर का, जैसे कि मई मंथ है, सपोज अज्यूम कीजिए कि मई मंथ है। तो मई मंथ में कोई एक पर्टिकुलर हर दिन में मई मंथ का 1 तारीख से लेकर 31 तक के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। 1 तारीख से लेकर 31 फर्स्ट से लेकर 31 मई तक के पूरा काउंट किया जाएगा टेम्परेचर। उसमें से जो एवरेज डेली टेम्परेचर आएगा
जो डेली एक एवरेज टेम्परेचर रहेगा उसे बोला जाता है मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर। ठीक है, तो उसे बोला जाता है टीए। उसके बाद टीएम क्या होता है, मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ सेम मंथ, यानी कि वो हॉटेस्ट मंथ का। इसमें क्या होगा टीएम में, सपोज मई मंथ का एक पर्टिकुलर एक डे, कोई डे होगा जैसे कि 15th मई, फॉर एग्जांपल 15th मई को मैक्सिमम टेम्परेचर रहा। ठीक है, 15th मई को मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, तो 15th मई का दिन भर का जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसका मीन निकाला जाएगा, वो हो जाएगा मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल है। और उसके बाद जैसे हमने देखे फॉर एवरी 1 डिग्री राइज 1 मीटर जो है 1% रनवे लेंथ इंक्रीज होती है। तो फाइनल फार्मूला जो बनेगा रनवे लेंथ का फॉर टेम्परेचर करेक्शन वो हो जाएगा रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो रनवे लेंथ आपको मल्टीप्लाई करना है करेक्शन के लिए वो आफ्टर एलिवेशन करेक्शन। ठीक है, जो एलिवेशन करेक्शन करने के बाद जो लेंथ आई थी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1% राइज हो रहा है, ठीक है ना, 1% रनवे लेंथ इंक्रीज हो रही है तो 1% लिखेंगे। ठीक है, 1% इंक्रीज हो रही है इंटू ए आर टी माइनस एस टी। ए आर टी एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर और एस टी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन। तो ये फॉर्मूला बनेगा फाइनल। ठीक है, इसको एक न्यूमेरिकल में शॉर्ट में देखोगे अगर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सारे फॉर्मूले, इसको इसे आप टी ए भी बोल सकते हो और टी टू को टी एम भी बोल सकते हो। टी वन इज ऑल्सो टी ए और जो टी टू है आपका वो टी एम भी है, मैक्सिमम डेली वाला। बेटर है आप उसको टी ए और टी एम बोलो। उसके बाद देखिए करेक्शन ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि डेली टेम्परेचर डेटा फॉर हॉटेस्ट मंथ ऑफ अ ईयर इज गिवन फॉर एन एयरपोर्ट साइट इज गिवन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जो टी एम और टी एम ने देखे, ये एवरेज डेली टेम्परेचर और ये मैक्सिमम उस दिन का है, तो ये इसका एवरेज निकाला जाएगा और इसका भी एवरेज। ये जो एवरेज आएगा ये टी ए रहेगा, जो मैक्सिमम रहेगा वो टी एम रहेगा, जो मैंने आपको अभी बताया एक पर्टिकुलर फॉर्म में। आफ्टर दैट फार्मूला सिंपल हम रखेंगे, जैसे अभी हमने देखे फार्मूला यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने अभी देखे किस तरीके से फार्मूला निकला था। 15 डिग्री जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन था, 15 डिग्री हमने क्यों लिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर माइनस 0.65% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 0.65 जो है 6.5 डिग्री जो है वो, देखिए यहाँ पे क्या होता है 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर राइज, उसके हिसाब से 0.65% हमने लिए थे। ठीक है, आप वो फॉर्मूला याद रखेंगे, आर इज 0.65%। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट इज टेम्परेचर के बाद कलेक्शन, करेक्शन आपका आएगा। देखिए यहाँ पे अब जो टेम्परेचर करेक्शन फॉर एग्जांपल आपने किए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 माइनस 6.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000 जो एलिवेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टेम्परेचर 14.35 आया। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, टेम्परेचर में जो राइज आया ए आर टी माइनस एस टी किए, 13.65% डिग्री आ गया। ठीक है ना, तो फाइनली करेक्शन फॉर टेम्परेचर कैसा आएगा, 1/100 इंटू 614 इज अ बेस रनवे लेंथ आफ्टर करेक्शन फॉर एलिवेशन। ठीक है, उसको 1% है और ये 13.65 जो है ए आर टी माइनस एस टी। ठीक है, तो करेक्टेड रनवे लेंथ कैसा निकालेंगे आप, जो आपने ऑलरेडी ऐड कर चुके हो एलिवेशन करेक्शन प्लस टेम्परेचर करेक्शन, तो 614 प्लस 84। ठीक है, तो 698 आ गया। ठीक है, अब उसमें एक बेसिक रनवे लेंथ में एक चीज़ याद रखिए, जो दो करेक्शन अभी हुए, करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। ठीक है ना, करेक्टेड रनवे लेंथ फॉर बोथ करेक्शंस अभी क्या आया 698। ठीक है, लेकिन एज पर ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या बोली है कि जो करेक्टेड करेक्शंस आएंगे, जो करेक्शंस आपने अप्लाई किए वो 35% से कम होना चाहिए बेसिक रनवे लेंथ। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, 35% से कम होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ करेक्शन कैसे निकालेंगे, अभी जो हमने हमारी जो लेंथ आई 698 आई, बेसिक रनवे लेंथ 600 थी, डिवाइड बाय 600, तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ आफ्टर करेक्शन, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 16.33 विच इज लेस देन 35%। हेंस ओके ओके, तो ये एज पर ICAO ये कम होना चाहिए करेक्शन, 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज
करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, लास्ट करेक्शन रहेगा करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। तो रनवे ग्रेडियंट जो है उसमें जैसे हमने देखे थे कि दो प्रोफाइल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी लेंथ ले लो, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से प्रोफाइल हो, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल है और ट्रांसफर प्रोफाइल भी होता है ग्रेडियंट। ट्रांसवर्स ग्रेडियंट जो कि कैम्बर आपने रोड में देखे उसी तरीके से होता है, जो कि वाटर के डिस्पोजल के लिए यूज किया जाता है। अभी हम ट्रांसवर्स को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट, ठीक है। करेक्शन फॉर ग्रेडियंट जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट के लिए होगा, ठीक है ना। इफ द ग्रेडियंट इज स्टीप इट मे कॉज प्रीमैच्योर लिफ्ट ऑफ और मे इंड्यूस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट स्टीप हो या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो, ठीक है। ज़्यादा ग्रेडियंट स्टीप नहीं होना चाहिए, यूजुअली फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। It will cause more consumption of energy and will require longer length of runway to attain the desired ground speed, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रनवे लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखिए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको सिंपल लैंग्वेज, सपोज इस तरीके से ग्रेडियंट है, ठीक है, इस तरीके से कोई ग्रेडियंट है, तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप इस लेंथ को इसको इंक्रीज करोगे तो ग्रेडियंट जो स्लोप है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेंथ को इंक्रीज करोगे तो ये जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज, इसलिए रनवे की लेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या होता है, इसमें ICAO की तरफ से इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्पेशल, लेकिन FAA जो है, फेडरल एविएशन एजेंसी जो है USA की, उसने रिकमेंड की है रनवे लेंथ इज टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% फॉर एवरी 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट, यानी कि हर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के इंक्रीज पर 10% रनवे लेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है। अब इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ को समझ लीजिए, सिंपल मैं आपको अभी इफेक्टिव ग्रेडियंट के हिसाब से बताता हूँ। देखिए जैसे कि ग्रेडियंट करेक्शन, अब देखिए कई दफ़ा क्या होगा, सपोज 90 मीटर का एलिवेशन है, प्रोफाइल है, रनवे प्रोफाइल है, एक तरफ 90 मीटर का एलिवेशन है, फिर 100 मीटर, फिर आगे बढ़े तो 80 मीटर, तो ये क्या है, एक तरीके का ग्रेडियंट है। तो इफेक्टिव ग्रेडियंट जो है सबसे पहले हम वो निकालते हैं, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं इफेक्टिव ग्रेडियंट, जिसको हम EG से डिनोट करते हैं। तो इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालते वक्त कैसा निकालेंगे, हाईएस्ट एलिवेशन माइनस लोवेस्ट एलिवेशन। हाईएस्ट कितना है 100 मीटर, लोवेस्ट है 80 मीटर, डिवाइड बाय बेसिक रनवे लेंथ। अज्यूम करेंगे कि बेसिक रनवे लेंथ 1000 मीटर, जस्ट अज्यूम करेंगे, तो क्या आ जाएगा, EG इफेक्टिव ग्रेडियंट कैसा आएगा, 100 माइनस 80 डिवाइड बाय 1000, तो ये कितना आएगा 0.02, यानी कि कितना परसेंट, 2%। इफेक्टिव ग्रेडियंट कितना आ जाएगा 2%, ठीक है। और एज पर FAA, ठीक है, फेडरल एविएशन एजेंसी जो है उसके हिसाब से, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, दैट इंक्रीज इज 20%, ठीक है। फॉर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट जो इंक्रीज होगा दैट विल बी 20%, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, FAA जो की तरफ से कि फॉर एवरी 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट 20% इंक्रीज इन एलिवेशन इन रनवे लेंथ। तो अब GC कैसा निकलेगा, जो ग्रेडियंट करेक्शन है, रनवे लेंथ जो कि टेम्परेचर करेक्शन के बाद आई, लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन इनटू 20%, क्योंकि 20% इंक्रीज हो रही है लेंथ, इनटू इफेक्टिव ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसको सिंपल यहाँ पे हम रख देंगे फॉर्मूले में, इफेक्टिव ग्रेडियंट जो कि परसेंटेज में ही रहेगा, इफेक्टिव ग्रेडियंट शुड बी इन परसेंटेज। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट करेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे 20% इंक्रीज होता है, ठीक है, रनवे लेंथ में, नॉट 10%, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया ग्रेडियंट करेक्शन, ठीक है। तो ये 3 करेक्शन, तीनों के फॉर्मूले आपको याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, सीक्वेंस ऑफ करेक्शन शुड बी मेंटेन। सबसे पहले हम एलिवेशन करेक्शन करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर करेक्शन, उसके बाद ग्रेडियंट करेक्शन, ठीक है। ये तीनों सीक्वेंस में चलना चाहिए करेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आई होप आपको ये करेक्शन समझे, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।